Hello dear TYBSC. Now we are at the end point of our syllabus, which is the prevention of allograft rejection. We have already learned how the graft are getting rejected in the recipient. Then we have already seen the types of the grafts, and here we are going to see how to prevent that rejection of the graft in the recipient. Now, since we know that our immune system is very capable to resist any type of antigen, so that is why we must make it a type of, we must do some mechanisms so that our immune system doesn't do that mechanism to reject or doesn't reject that graph. Okay, we need to do some kinds of the mechanism, some kinds of medications, some kinds of test before doing the transplantation, so as to reduce the risk of the graft of rejection of graft, sorry. Then here we are going to see the mainly two types of the phenomena which are going to be performed in the graft or in the transplantation to prevent the graft rejection. Now the first one here is the tissue typing. So what is tissue typing? So the tissue typing, it's kind of a test which is done to check if that antigen or if that recipient is going to like accept it or not. We need to check that compatibility between the host and the donor so that the risk of the rejection gets reduced. Okay, so here we are going to do that test. Now what is the main thing which is going to get test is the HLA. Now this is very new term, or maybe you have this like somewhere you must have read it or not, but it is a term which plays very important role in the graft rejection, because this thing which is the HLA plays very important role in the protection of our body. Like it plays very important role in the immune system. It is present on the leukocytes. Okay, it is present as an antigen on the surface of the leukocyte. Now this compatibility of the HLA is very important, because if the HLA gene is not like compatible between the recipient and donor, then the recipient may not accept that graft. So for that purpose we are going to perform the test which is the tissue typing test. Okay, so HLA जो है it is a type of the surface antigen. ओके, इसका फुल फॉर्म ही है कि ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन. तो वो ल्यूकोसाइड्स पे प्रेजेंट रहता है, एंटीजन है, मतलब उसी की वजह से कहीं ना कहीं इम्यून रिस्पॉन्स इज गोइंग टू गेट जनरेटेड. सो फॉर दैट पर्पज़ उनकी कंपैटिबिलिटी टेस्ट की जाती है. जनरली क्या होता है, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनमें 50-50% जो है HLA कंपैटिबिलिटी होती है, और हम में और हमारे पेरेंट्स में एज वेल एज हम में और हमारे सिबलिंग्स में भी 50% जो है कैपेबिलिटी सॉरी कंपैटिबिलिटी होती है. तो 50% है, मतलब ऐसा कहीं पे मैंने पढ़ा था कि ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमारे फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फैमिली मेंबर्स में ही कंपैटिबिलिटी होती है. अगर आपने सुना होगा कि डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन जो किया जाता है या ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, तब वो जनरली इट इज़ डन विद इन द फैमिली ओनली. फैमिली मेंबर्स में ही लाइक कोई हम जो है पेशेंट को डोनेट करता है. तो ये सब क्यों किया जाता है, बिकॉज नेचुरली वो कंपैटिबिलिटी आती है हम में कि HLA जो जीन्स है वो हमारे कंपैटिबल होते हैं, सो दैट रिजेक्शन नहीं होता या मैकेनिज़म्स नहीं होते. तो ये जो थिंग, ये जो फिनोमिनॉन है जिससे ये HLA की कंपैटिबिलिटी देखी जाती है, इट इज़ द टिश्यू टाइपिंग. तो यहाँ पे क्या किया जाता है,
एक तो आजकल हमारा साइंस लाइक रिसर्च टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुका है, तो इसकी वजह से ज़्यादा किचकट प्रोसेसेस नहीं करनी पड़ती, थोड़ी सिंप्लीफाइड होती है। पीसीआर जो है ऑटोमेटेड है आजकल, तो पीसीआर टेक्निक से डीएनए का आइसोलेशन करके दोनों पेशेंट एंड रेसिपिएंट का हम एचएलए टाइपिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग द पीसीआर, वेरी कॉमन। और जो पुराना या थोड़ा यू कैन से पेचीदा टाइप ऑफ मेथड इज़ अ टिश्यू टाइपिंग मेथड, इज़ लाइक दैट कि क्या किया जाता है, जो पेशेंट है उसमें से जो है सेल्स ली जाती है, बी सेल्स या इम्यून सेल्स, और जो रेसिपिएंट है उसके इम्यून सेल्स ली जाती है। तो क्या होता है, अगर वो दोनों कंपैटिबल नहीं है तो हमें पता है, सपोज उनमें से एक का हमें पता है कि फॉर एग्जांपल हमें पेशेंट का पता है या हमें डोनर का पता है कि वो क्या एंटीबॉडी सिक्रीट करने वाला है या क्या करने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर जो है पेशेंट के सेल्स को नहीं पता या पेशेंट का सेल उससे कंपैटिबल नहीं है, तो ये सेल अगर हम दोनों को रिएक्शन में डाल दें तो क्या होगा कि ये जो हमारे पेशेंट के सेल है वो जाके उनसे बाइंड होंगे, उनको एज एन एंटीजन कंसिडर करेंगे और प्रोलिफरेशन होगा पेशेंट के सेल्स का। ओके, सो इससे क्या हम कंक्लूड कर सकते कि ये दोनों कंपैटिबल तो नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हाँ पेशेंट के सेल ने इसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं जनरेट किया है। सो दैट इज़ वाई ऐसे भी हमें लाइक उसके एचएलए जो होते हैं ना, एचएलए जीन्स वो एक नहीं होते, बहुत सारे जीन्स होते, तो इसीलिए बहुत टेडियस प्रोसीजर है ये। तो ये प्रोसीजर करने के लिए जनरली पीसीआर टेक्निक यूज़ की जाती है। नाउ एचएलए मेथड के बाद देयर इज़ वन मोर थिंग, जो इट इज़ द एचएलए जो है उसके बाद एक ब्लड ट्रांसप्लांटेशन करते वक्त एक टेस्ट की जाती है। Yes, I forgot to tell. There is a cytometry for flow cytometry test also is performed, जो एचएलए टाइपिंग में ही मतलब की जाती है। फ्लो साइटोमेट्री में क्या होता है कि फ्लो साइटोमेट्री एक प्रोसीजर अगर आपने कहीं पढ़ी होगी तो, या एमएससी में भी है, आपको ये इन डिटेल में नहीं बताऊंगी, पर फ्लो साइटोमेट्री में भी टिश्यू की कंपैटिबिलिटी या सेल्स की कंपैटिबिलिटी, मतलब उनकी फिजिक लाइक प्रॉपर्टीज़ कितनी सिमिलर है, केमिकल हो या कुछ भी हो, प्रॉपर्टीज़ कितनी सिमिलर है उसके बेसिस पे वो की जाती है, तो वो अटैच हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है उसमें, तो फ्लो साइटोमेट्री टेस्ट होती है, तो वो भी यहाँ पे की जाती है। देन अलॉन्ग विद दैट एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की जाती है, आपको पता होगा ये, तो वो भी एक टाइप की उसको कुछ नाम है, आई डोंट रिमेम्बर, बट वो भी एक टेस्ट की जाती है। सो वो जो टेस्ट है ब्लड ग्रुप मतलब हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो टेस्ट किया जाता है। आपने लैब लेवल पे भी की थी वो टेस्ट, आपने प्रैक्टिकल किया होगा बायोलॉजी में, तो वहाँ पे हमने क्या किया था कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हम लोग करते हैं, मतलब अगर अग्लूटिनेशन हुआ तो हमारा वो ब्लड ग्रुप नहीं है, क्लॉटिंग नहीं हुआ तो हमारा ब्लड ग्रुप है, ऐसा कुछ हम करते, आपको याद होगा। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज़ ऑल्सो वे ऑफ डिटेक्टिंग द एचएलए और वे ऑफ डिटेक्टिंग द एंटीजन। तो उससे भी हम ये फाइंड आउट कर सकते कि हमारा लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आई एम टॉकिंग कि हमारा ब्लड ग्रुप और उसका ब्लड ग्रुप सिमिलर है कि नहीं, एंड देन ओनली वी कैन डोनेट दैट ब्लड टू दैट रेसिपिएंट। तो ये भी एक टेस्ट की जाती है। एंड द लास्ट मेथड इज़ द इम्यूनोसप्रेशन बाय यूजिंग द ड्रग्स, मतलब कि कुछ मेडिकेशंस दी जाती है, मेडिसिन्स दी जाती है, ड्रग्स इन द सेंस कि मेडिसिन्स दी जाती है जो दे विल सप्रेस द इम्यून सिस्टम ऑफ द पेशेंट, ताकि वो इम्यून सिस्टम जो है वो पेशेंट के बॉडी में लाइक टी सेल्स हो जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, तो उनको थोड़ा सप्रेस किया जाए, उनकी एक्टिविटी को थोड़ा सप्रेस किया जाए, ताकि वो इस ग्राफ्ट को एज एन एंटीजन नहीं ले या वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाए कि वो एंटीजन है कि नहीं, सो दैट कि हमारा ग्राफ्ट आराम से वो एडजस्ट हो पाए हमारे रेसिपिएंट के बॉडी में, नॉट हमारे। सो
this thing is done by using some medications which we are going to see. So अगर आपने कभी किसी जिसका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया है ऐसे पेशेंट को देखा होगा, तो उन्हें ना फर्स्ट 6 महीने या फर्स्ट 1-2 साल बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ती जब तक ये ऑर्गन एडजस्ट नहीं होता, और तब तक उनको उनको एक इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती है, सो दैट कि उनकी बॉडी कुछ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट ना करे एंटीजन के या ग्राफ्ट के अगेंस्ट या ट्रांसप्लांट किए हुए ऑर्गन के अगेंस्ट कोई इम्यून रिस्पॉन्स ना जनरेट कर पाए। इसके लिए उनको कुछ ड्रग्स दी जाती है, उनको कुछ मेडिकेशंस दी जाती है जिससे वो प्रिवेंट हो ओके इम्यून रिस्पॉन्स। तो उनको बोला जाता है कि आप अपने प्रिकॉशंस लो अच्छे से, आप बीमार पड़ सकते हो जल्दी, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम तो सप्रेस है। तो उनको मुंह ढक के रहना पड़ता है, जैसे हम तो आजकल रोज़ ही ढक के रहते हैं मुंह, बट उनको उनको कंपल्शन किया जाता है कि अब तो करो, मास्क पहनो, गर्म पानी पियो, खुद की केयर करो, सो दैट कि आप बीमार ना पड़ो, क्योंकि आपकी सिस्टम अभी इतनी एक्टिव नहीं है, बिकॉज हमने आपको इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग दी है ओके। सो दिस इज़ द मेन थिंग, दैट इज़ वाई उनको बहुत केयर करने के लिए कहा जाता है। तो कौन से ड्रग्स होते हैं वो, फर्स्ट वन इज साइक्लोस्पोरिन, उसको FK506 नाम है। देन ये भी ड्रग्स क्या करते हैं, टी सेल का साइटोकाइन प्रोडक्शन का फिनोमिनॉन बंद करते हैं, जिससे कि NF80 जो पाथवे है ट्रांसक्रिप्शन का वो ना हो, सो दैट जो है साइटोकाइन प्रोडक्शन ना हो। साइटोकाइन प्रोडक्शन नहीं होगी तो वो अब टी सेल जो है मैंने आपको बताया था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट सेल है जो बहुत सारे सेल्स को एक्टिवेट करती है, तो उनका कई बार ये मैकेनिज्म होता है थ्रू द साइटोकाइंस, तो इसलिए उनका साइटोकाइन प्रोडक्शन का ही हिंड्रेंस करना है, सो दैट दे वोंट एक्टिवेट द अदर सेल्स। नाउ द सेकंड वन इज द माइकोफिनोलेट मोफिटाइल, वो जो है इट ब्लॉक्स द लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन बाय इनहिबिटिंग द ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस इन द लिम्फोसाइट। अगेन ये जो है लिम्फोसाइट्स पे अटैक करता है, मतलब बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स पे, नेचुरल किलर सेल्स पे अटैक करता है, उनका ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड का जो है प्रोडक्शन ही नहीं होने देता, दैट इज़ वाई लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन नहीं होता ओके। देन लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन नहीं होगा तो फिर एंटीबॉडी जनरेट नहीं होगी, सो इट इज़ अ मेन थिंग। देन रैपामाइसिन इज देयर जो लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन अगेन नहीं होने देता, वो पर्टिकुलरली इंटरल्यूकिन 2 सिग्नलिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने टी सेल के एक्टिवेशन में देखा था, तो वो सिग्नलिंग बंद कर देता है, तो इससे प्रोलिफरेशन नहीं होता, टी सेल का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता इफेक्टर सेल्स में एंड मेमोरी सेल्स में। Now corticosteroids are there which again reduce the inflammation by inhibiting मैक्रोफाजेस पे। अभी ये वाले ड्रग जो है वो मैक्रोफाजेस पे अटैक करने वाले हैं, उनका साइटोकाइन प्रोडक्शन नहीं होने देगा ताकि टी सेल एक्टिवेट ना हो पाए। देन द एंटी CD3 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है जो टी सेल का डिप्लेशन करते हैं बाय बाइंडिंग टू द CD3 एंड प्रमोटिंग द फैगोसाइटोसिस और कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड लाइसिस यूज टू ट्रीट द एक्यूट रिजेक्शन। जो एक्यूट रिजेक्शन है जो बहुत कॉमन है, हमने डिस्कस भी किया था, तो ये जो ड्रग है एंटी CD3 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वाला ड्रग, सो ये जो ये टी सेल का अगेन डिप्लेशन करता है, उनसे कुछ टी सेल्स पे जो CD3 रिसेप्टर्स होते हैं उन पे जाके बाइंड करता है, और इससे क्या होता है टी सेल्स का फैगोसाइटोसिस हो जाता है, दैट इज़ वाई टी सेल्स का काउंट ये लो करते हैं। नाउ द एंटी इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर एंटीबॉडीज जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये जाके टी सेल का अगेन सबका मेन टारगेट मोस्टली टी सेल्स है, यू कैन सी इन हियर, तो ये जो टी सेल का प्रोलिफरेशन ब्लॉक करते हैं बाय ब्लॉकिंग द इंटरल्यूकिन 2 बाइंडिंग। तो मैंने आपको सिखाया था टी सेल जब एक्टिवेट होती है तब जब मैक्रोफाजेस या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इंटरल्यूकिन 2 सिक्रेट करती है, उसके बाद टी सेल एक्टिवेट होती है और वो इंटरल्यूकिन 2 का रिसेप्टर साइटोटॉक्सिक टी सेल पर्टिकुलरली वो इंटरल्यूकिन 2 का रिसेप्टर एक्टिवेट कर देती है, तो ये हो नहीं पाता, तो वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाती। देन CTLA4 इम्यूनोग्लोबुलिन इट अगेन इनहिबिट्स द टी सेल एक्टिवेशन। अब ये कैसे करते हैं, B7 को स्टिमुलेटर, जो मैंने आपको बोला था
कि अगर को-स्टिमुलेटर्स नहीं होंगे, जैसे कि B7 CD28 अगर नहीं होंगे, तो वो जो टी सेल्स है, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल या टी सेल है नॉर्मल, तो वो साइटोकाइंस एक्टिवेट नहीं हो पाएगी और वो जो है इम्यून रिस्पॉन्स लाइक बस कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेंगे, उसको एनर्जी बोला जाता है, एनर्जी। ओके, सो ये होगा यहाँ पे। देन ये B7 को ही ब्लॉक कर देंगे, जिससे बी सेल एक्टिवेट नहीं होगी, वो जो है प्रोलिफरेट नहीं होंगे, डिफ्रेंशिएट नहीं होंगी। देन एंटी CD40 लिगांड जो है, इट इज़ गोइंग टू बी inhibiting the macrophages and endothelial activation by blocking the T cell CD40 ligand binding to macrophages CD40 experimental. Okay, so now यह भी प्रूव नहीं हुआ है, एक्सपेरिमेंटली ये बोला जाता है कि ये जो है एंटी CD40 लिगांड जो ड्रग है, इट इज़ नाउ गोइंग टू इनिबिट द, बिकॉज वो CD40 रिसेप्टर भी एक को स्टिमुलेटर है, तो ये नॉट अ को स्टिमुलेटर, एक्चुअली देयर आर मेन रिसेप्टर्स, तो वो अगर बाइंड नहीं होंगे तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जैसे कि मैक्रोफाजेस का और टी सेल का बाइंडिंग नहीं हो पाएगा और आगे का कोई प्रोसीजर नहीं होगा। इन शॉर्ट ये सभी ड्रग्स जो है कहीं ना कहीं टी सेल को टारगेट करते हैं, उनको कहीं साइटोकाइंस रिलीज नहीं करने देंगे, कहीं पे वो उनको बाइंड ही नहीं होने देंगे, कहीं पे वो उनके रिसेप्टर्स को बाइंड नहीं होने देंगे, कहीं पे वो इंटरल्यूकिन 2 को टारगेट करेंगे। मतलब इनका टारगेट फिक्स है टी सेल, क्योंकि टी सेल एज आई टोल्ड इज द हार्ट ऑफ द immune system. So this is about it. With this point we are going to end the syllabus. I will pass the notes on Google Classroom, check them out, and if you have any query related to any point, please feel free to contact me. No issues at all, please don't hesitate to contact. Just I am one phone call away, please call and ask me any query related to any point of syllabus. Okay, so just study hard. I know immunology is a vast syllabus and it is a vast subject as well, but please, if you follow the notes, if you follow the lectures, watch them carefully, prepare your own short notes, then it will be very helpful for yourself. So guys, buckle up, and this is the last year of your graduation, so give it all. Okay, so bye, take care, and thank you.